students. Today we are going to solve the problems from exercise 1.6 of chapter 1 number system. So here the question number 1 is this question number 1 find. तो क्या करना है find करना है find और we have here chapter 1 is number system. Question number first, इसका first part क्या है? The first part of the question number 1 is 64 raised to 64 whole power 1 by 2. ये हमारा question. So this will implying that now we have the value of 64. So clearly 64 is the perfect square of किसका है? It is 8 का perfect square है, ठीक है? और we can say this will give you the prime factors of 64 is equals to, so 2 into 2 into 2 into 2 into 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 and then into 2. Total कितना हो गया? How many times? 1 2 3 4 5 and 6. तो मैं इसको क्या करता हूँ, पेयर ये तीन के जोड़ कॉम्बिनेशन में लिखता हूँ. तो ये टोटल कितना हो जाएगा? This can be written down 8 into 8 or it is equals to 8 square. Then what is the value of 64 raised to 1 by 2? That is the square root of 64 is equals to 64 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 8 square and it is 1 by 2 or it is equals to 8. Now off the bracket जो रूल हमने पढ़ा था वो क्या था? A to the power m whole power n. So a to the power mn. So that is equals to 2 into 1 by 2. This 2 and 2 is to be cancelled out and it is equals to 8 to the power 1, that is equals to 8, and this becomes your answer. Now the second part 32 raised to 1 by 5. 32 to the power 1 by 2. This will implying that we have to starting now 32. So we have to directly written down here the prime factors of 32. 64 के कितने थे? 2 की फॉर्म में अगर इसको मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 raised to 6 और इसमें से एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 के प्राइम फैक्टर. 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So it is equals to, इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to 5. Then this is equals to, which is implying that 30 here 30 okay. Now 32 to the power 1 by 5.
Now prime factors of 32 we have finding out here 2 raised to 5. So this can be written down 2 raised to 5 whole power 1 by 5. So finally it is 2 raised to, पहले तो हम लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे into 1 by 5. So this 5 and 5 is to be cancelled out, and we are getting it is 2 raised to 1, and finally it is 2. So this is the answer of this problem. That means 32 raised to, which is implying that हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 32 raised to 1 by 5 equals to 2. और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 64 raised to 1 by 2 is equals to 8. Third part I am leaving for you. It is 125 raised to 1 by 3. Okay, so now we have to moving on to the question number second. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमको फाइंड ही करना है, फाइंड एंड इट्स फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है 9 रेज टू 3 by 2, 9 रेज टू 3 by 2, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है ना। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं 9 रेज टू 3 by 2. सो इट कैन बी रिटन डाउन. सो नाउ बेस में क्या है हमारा 9 और पावर कितनी है फ्रैक्शन में 3 by 2. तो क्या लिख सकते हैं हम, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 आर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 आर इज इक्वल टू, तो क्या कितने होंगे, 3 into 3 क्या हो गया 9 हो गया. दैट मीन्स 9 कैन बी रिटन डाउन, इट इज 3 स्क्वायर, देन 9 raised to 3 by 2. तो 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर, तो वी कैन रिटन डाउन इट इज 3 स्क्वायर whole raised to 3 by 2. Then simplifying this one, 3 raised to 2 into 3 by 2. Now 2 and 2 is to be cancelled out, so it is equals to 3 raised to 3. Now 3 raised to 3 का मतलब क्या हो गया, 3 into 3 into 3. तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. That means we are getting the final value of, or the final answer is, so 9 raised to 3 by 2 is equals to 27. ये आपका आंसर होगा. This becomes the answer. 9 raised to 3 by 2 equals to 27. Similarly, सेकेंड पार्ट है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. थर्ड पार्ट, चलिए थर्ड पार्ट में आपको डिस्कस कर देता हूँ. इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 16 raised to 3 by 4. इट इज 16 raised to 3 by 4. ये है हमारे पास. तो इसका सॉल्यूशन आगे, तो 16 हमारा क्या है बेस में है, तो प्राइम फैक्टर्स हम किसके फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 इज इक्वल्स टू, तो इसके हम लिखेंगे 2 into 2 into, it is 2 into 2. so this can be written down, हम इसको 2 raised to 4 लिख सकते हैं. then finally what we have to do, हम क्या करेंगे, so 16 raised to 3 by 4 is equals to, at the place of 16 we can written down 2 raised to 4 and whole raised to 3 by 4, ऐसे लिखेंगे. then in the next step we have to written down, it is 2 raised to 4 into 3 by 2. पावर ब्रैकेट ऑफ करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर गेटिंग इट इज इक्वल्स टू 2 raised to 3. तो 2 raised to 3 का क्या मतलब हो गया, वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 into 2 into 2, that is equals to
8. That means finally our answer is the value of 16 raised to 3 by 4 is equals to 8. ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा. ये this becomes the final answer of 16 raised to 3 by 4. Now we are moving to the question number 3rd. तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3rd? We are taking the question number 3rd is, so question number 3rd is simplify. आपको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, तो पहला पार्ट है इसका. फर्स्ट पार्ट इज गिवन हियर. इट इज 2 raised to 2 by 3, 2 raised to 2 by 3 and into 2 raised to 2 raised to 2 raised to 1 by 5. now क्या है हमारे पास रूल क्या कहता है कि व्हेन द बेस इज सेम, बेस अगर सेम है तो बेस को लिख के हम ऊपर की जो पावर दोनों अलग अलग है. ये पावर 2 by 3 है और ये 1 by 5 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 raised to it is 2 by 3 plus 1 by 5. देन बेस तो सेम रहेगा 2 और पावर में दो फ्रैक्शंस आ गए, रेशनल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम इसको यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम तो 3 और 5 दोनों क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम इज 15. नाउ 15 इज डिवाइडिंग बाय फर्स्ट 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 5 जा 15, 5 आया हमारा रिजल्ट. 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10 प्लस. नाउ 15 is dividing by 5. It divided exactly 3 times and 3 is multiplied to 1. So here it is 1 into 3, it is 3. Then final answer क्या हो जाएगा हमारे पास? It is 2 raised to 10 plus 3 कितना हो जाएगा? 13. So it is 13 by 15. ये हमारा जो है फाइनल आंसर होगा. That means this will implying that if 2 raised to 2 by 3 into, जैसे या तो डॉट लगा लें या क्रॉस का साइन, तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है, मल्टीप्लिकेशन. देन इट इज 2 raised to 1 by 5 is equals to 2 raised to 13 by 15. तो ये वैल्यू होगी आपकी 13 by 15. दिस इज 13 by 15. ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा. ये आंसर है हमारा. दिस बिकम्स दी, यहाँ से यहाँ पे मैं एक साथ ले लेता हूँ, इसको ऐसे बॉक्स में लिख देता हूँ. ये बॉक्स बना दिया मैंने और यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है. इसका सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है तो हम पहले लिख लेते हैं. इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 raised to 3 और इस पूरे की जो पावर है, द होल पावर इज इक्वल्स टू 7. इट इज 7. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे. ये जो 7 है दिस कैन बी टेकन डाउन 1 अपॉन 3 raised to 3 और उसकी पावर क्या लगा देंगे 7. देन इट इज इक्वल्स टू 1 तो न्यूमरेटर रहेगा, 1 की पावर 7 लिखेंगे तो 7 ही आएगा. क्या हम इसको 1 की पावर 7 लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं. 1 की पावर 7, न्यूमरेटर की पावर 7 और डिनोमिनेटर की पावर 7, तो 1 की पावर 7 कितना हो गया? 1. एंड हियर इट इज 3 to the power 3 into 7. तो आपका फाइनल अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 3 raised to 21. ना डिनोमिनेटर में है 3 raised to 21. When we are keeping this term to the numerator, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव पावर क्या होती है? नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव अगर होता तो वो पॉजिटिव हो जाती. तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 raised to minus 21. That means which is implying that finally 1 upon 3 raised to 3
whole power 7 can be written down 3 raised to minus 21. ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ, फाइनल आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। ये आपका आंसर। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। 11 रेस टू 1/2 एंड अपॉन 11 रेस टू 1/4। तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है 11 रेस टू 1/4 उसको आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे एंड देन बेस सेम हो जाएगा, फिर से पावर को हम ऐड कर देंगे। तो थर्ड पार्ट जो है वो मैं लिख रहा हूँ डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ। फोर्थ में आपको सॉल्व कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ है 7 रेस टू 1/2 इंटू और है 8 रेस टू 1/2। ना इसको सॉल्व करेंगे तो देखो पावर सेम है, पावर दोनों की क्या है 1/2 एंड 1/2, दिस इज सेम बट बेस इज डिफरेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a रेस टू m इंटू बी रेस टू m, तो a इंटू बी रेस टू m हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सो दिस कैन बी रिटन डाउन 7 इंटू 8 और दोनों की पावर कितनी है, दोनों की पावर है 1/2। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई 7 इंटू 8, कितना हो जाएगा 7 इंटू 8 इज 56 एंड 56 होल पावर कितना लिखेंगे हम 1/2। So this will implying that the value of 7 raised to 1/2 into 8 raised to 1/2 is equals to 56 raised to 1/2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। And this exercise 1.6 is completed here। ये आपकी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गई। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड फॉर द सॉल्यूशन जो मैंने डिस्कस किए हैं। एक्सरसाइज 1.6 फ्रॉम चैप्टर 1। चैप्टर 1 है हमारा नंबर सिस्टम। तो एंड ओवरऑल वी हैव टू कंप्लीटेड हियर द चैप्टर 1 is completed here। So this is all about from my side. I hope you will understand the video solution of exercise 1.6. Thank you very much to watch this video.